أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر چوتھا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی تشریف آوری نعمت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکتوں اور انعام کا سبب ہے. اس سے میلاد کی محفلوں کے اچھی اور برکت والی ہونے کی سند ملتی ہے. اور تمہیں بادشاہ کیا یعنی آزاد اور شان و عزت والے ہونے اور فرعونیوں کے ہاتھوں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کے عیش و آرام کی زندگی پانا بڑی نعمت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک کہلایا جاتا. اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے سنسار میں کسی کو نہ دیا، جیسے کہ دریا میں راستہ بنانا، دشمن کو ڈوبو دینا، من اور سلوا اترنا، پتھر سے چشمے جاری کرنا، بادل کو سائبان بنانا وغیرہ. اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور پیچھے نہ پلٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اس زمین کو پاک اس لیے کہا گیا کہ وہ نبیوں کی دھرتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کے رہنے سے زمینوں کو بھی عزت ملتی ہے اور دوسروں کے لیے وہ برکت کا کارن ہوتی ہے. کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان پروت پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ پاک ہے اور آپ کی ذریت کی میراث ہے.
यह सरजमीन तूर और उसके आसपास की थी, और एक कौल यह है कि तमाम मुल्के शाम की नुकसान पर पलटोगे। बोले, ए मूसा, उसमें तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, और हम उसमें हरगिज दाखिल न होंगे जब तक वो वहां से निकल न जाएं। हाँ, वो वहां से निकल जाएं तो हम वहां जाएं। दो मर्द की अल्लाह से डरने वालों में से थे, कालिब बिन युकन्ना और यूशा बिन नून, जो उन नकीबों में से थे जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब्बारों का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा था। अल्लाह ने उन्हें नवाजा प्रदान किया हिदायत और एहद पूरा करने के साथ। उन्होंने जब्बारों का हाल सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया और इसको जाहिर न किया। दूसरे नकीबों के विपरीत की उन्होंने जाहिर कर दिया था। बोले कि जबरदस्ती दरवाजे में शहर के उन पर दाखिल हो, अगर तुम दरवाजे में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हारा ही गलबा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मदद का वादा किया है और उसका वादा जरूर पूरा होना। तुम जब्बारीन के बड़े बड़े जिस्मों से मत डरो, हमने उन्हें देखा है, उनके जिस्म बड़े हैं और दिल कमजोर है। उन दोनों ने जब यह कहा तो बनी इस्राइल बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने चाहा कि उन पर पत्थर बरसाएं, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम्हें ईमान है। बोले, बनी इस्राइल, ए मूसा, हम तो वहां जब्बारीन के शहर में कभी न जाएंगे जब तक वो वहां हैं, तो आप जाइए और आपका रब, तुम दोनों लड़ो, हम यहां बैठे हैं। मूसा ने अर्ज की कि ए रब मेरे, मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई का, तो तू हमको उन बेहुक्मों से अलग रख और हमें उनकी सोहबत और कुर्ब से बचाया। यह मानी कि हमारे उनके बीच फैसला फरमाया तो वह जमीन उन पर हराम है, उसमें दाखिल न हो सकेंगे। 40 बरस तक भटकते फिरे जमीन में। वह जमीन जिसमें ये लोग भटकते फिरे 9 फरसगन थी और कौम 6 लाख जंगी जो अपने सामान लिए तमाम दिन चलते थे। जब शाम होती तो अपने को वहीं पाते जहां से चले थे। यह उन पर उकूबत थी सिवाय हजरत मूसा व हारून व यूशा व कालिब के कि उन पर अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई और उनकी मदद की, जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा और सलामती बनाया, और इतनी बड़ी जमात का इतनी छोटी जमीन में 40 बरस आवारा और हैरान फिरना और किसी का वहां से निकल न सकना चमत्कारों में से है। जब बनी इस्राइल ने उस जंगल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खाने पीने वगैरह जरूरतों और तकलीफों की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की दुआ से उनको आसमानी गिजा मन्नो सलवा अता फरमाया और लिबास खुद उनके बदन पर पैदा किया जो जिस्म के साथ बढ़ता था, और एक सफेद पत्थर तूर पर्वत का इनायत किया कि जब सफर से रुकते और कहीं ठहरते तो हजरत उस पत्थर पर लाठी मारते। इससे बनी इस्राइल के 12 गिराहों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते, और साया करने के लिए एक बादल भेजा, और टीम में जितने लोग दाखिल हुए थे उनमें से 24 साल से ज्यादा उम्र के थे, सब वहीं मर गए सिवाय यूशा बिन नून और कालिब बिन युकन्ना के। और जिन लोगों ने पाक सरजमीन में दाखिल होने से इनकार किया उनमें से कोई भी दाखिल न हो सका। और कहा गया है कि 30 में ही हजरत दाऊद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात से 40 बरस बाद हजरत यूशा को नबुव्वत अता की गई और जब्बारीन पर जिहाद का हुक्म दिया गया। आप बाकी बचे बनी इस्राइल को साथ लेकर गए और जब्बारीन पर जिहाद किया, तो तुम उन बेहुक्मों का अफसोस न खाओ। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।